हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो और आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट के वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो एग्जामिनेशन पर्पज से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरे रजिस्ट्रेशन एक्ट में कौन से वो सेक्शंस हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन, स्टार्टिंग टू एंड हम देखेंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 2 क्लॉज 6। रिमेंबर स्टूडेंट, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट रजिस्ट्रेशन एक्ट तो सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एज वी नो, डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल property is already given in Transfer of Property Act, right? And it is given under section 3 of this law. यहाँ पर उसके साथ we read to this provision, that is 2 clause 6 of Registration Act, which defines actually what is immovable property. After this provision, as we always know that definitions are important for us, but पूरे रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखें तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर मैं रिफर करूं दैट इज सेक्शन 17। Why section 17 is important, student? Because section 17 of registration act है which gives a detailed information of various kind of document. वो documents जो आपको compulsory register कराना ही होता है। If you are not going to make registration of these document, effect will be very serious. So remember student, under section 17 we have a complete list of those documents which needs to be compulsory registrable. That is very important section. After that we will refer section 18. Why? Because under section 18 there are a list of the documents which you may register, you may not, means it is just optional for you. ये डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन है, ऑप्शनल होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो दैट इज गुड, बट इफ इवन दो अगर आप ओमिट कर देते हो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराने में तो उसका इफेक्ट इतना सीरियस नहीं होता, इट इज वेरी नॉर्मल। यहाँ पर ये दो सेक्शंस, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 आर very important section for the prelims and mains together, as I am saying, because यहाँ पर mains में भी कई questions बनते हैं and then we talk about prelim में तो होते हैं। Then we can take section 19 because it talks about the languages written in the document. When you are going for registration of a document और उस document की language आपको देखना है तो document की language क्या लैंग्वेज है, क्या वो लैंग्वेज उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो, इज इट existing at the time, means aware of that language. Otherwise अगर कोई ऐसी language है which is not officially recognized, means to say that is not practicable for the registering officers to translate it into other language, तो वो refuse कर सकता है। Section 19 related to the language in the document, that is what. Next one is section 21. Why? Because if you want to make registration of any document which is compulsorily registrable under section 17, remember student, it gives one more instructions to you. And what is the instruction? That you should give a complete description of that immovable प्रॉपर्टी। जिस डॉक्यूमेंट को लेके आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो एंड इफ दिस डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन आप दोगे, दैट इज मैंडेटरी। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी देन द रजिस्टरिंग ऑफिसर कैन रिफ्यूज टू इट रजिस्ट्रेशन। सो दैट इज अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। Next important section is section 23. Why it is important? Because actually this is the important sections which let you know what will be the duration to which you are going to present the document. कितने दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना है। Once the document has been executed, you are given the 3 months time or the 4 months time. तो यहाँ पर आपको ये 4 मंथ्स का टाइम जो मिल रहा है, इस 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराना है। इफ यू फेल्ड to apply for the registration of the document within 4 months, then you can take section 24, section 25. So basically these are the two sections which can be taken as an exception of section 23, because as per section 24, if you fail to present the document within 4 months, you are given some more time. और ये जो आपका मोर टाइम है ये रिलेटेड है ऐसे कि सपोज दैट द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट इज लिविंग इन एनी अदर कंट्री, नॉट इन इंडिया, तो जब वो कम बैक करेगा इंडिया में, व्हेन द पर्सन रिटर्न बैक्स टू योर कंट्री इंडिया, देन द टाइम विल स्टार्ट। तो वो जो ड्यूरेशन 4 मंथ्स का है दैट commences from the date when the person who is executed the document comes to India.
राइट नाउ फिर एक और भी आपको टाइम दिया गया कि सपोज करिए कि आप डॉक्यूमेंट को विद इन 4 months विच वॉज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 23 यू फेल्ड टू मेक रजिस्ट्रेशन and you are not the person who is living outside of the country, that is mean 24 is also not applied to you. Section 25 कहता है even if you fail to give the document for presentation within this time and the registration officer satisfied with the due diligence that यहाँ पर sufficient reasons है for delay के, तो आपको more time दिया जा सकता है. Right, so that may be possible under section 25 that you are allowed to give in some more time. इसके बाद एक सेक्शन और भी मैं आपको अगर रिफर करूंगी, that is section 23A. Why it is important? Because it talks about the re-registration of the document. Once the document is registered, we know that the document which is registered is a public document. लेकिन suppose करिए the person who has brought this document for registration, that person was not competent. It's mean that if the person who made this registration was not the competent person, that definitely that person who is competent for making registration should come forward. तो यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट रखा गया है ताकि जो पर्सन एक्चुअल में कॉम्पिटेंट है फॉर मेकिंग रजिस्ट्रेशन, फॉर गिविंग द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, वो उसको री रजिस्टर करवा ले एज पर लॉ. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शन इन दिस रिगार्ड. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कौन से वो लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, यानी मीन्स अगर आपको प्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन रेफर करना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन 32. अगर एक सेक्शन 32 से पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे दूं ज्यूरिसडिक्शन का, तो इट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये आपका जो सेक्शन है ये कहता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो किस डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे. सो दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट ज्यूरिसडिक्शन, द प्लेस वेयर यू नीड टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन. दिस इज सेक्शन 28. व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन 32, हु कैन मूव, Who can go for registration? कौन competent है for registering the document? यहाँ पर इन्होंने एक आपको लिस्ट दिया है कि ये सारे लोग हैं, that the person who actually executed the document, the person to whom the person who actually executed the document has delegated his powers, the legal representative and any other person according to the law. तो वो वहाँ पर registering के लिए जा सकता है. Suppose the person who executed the document is suffering from serious illness, तो obviously that person will not be able to move for registering the document. यहाँ पर वो अपने LR को authorize करेगा कि आप registering करा लो document की. This is the list which is provided in the section 32. 32 के बाद अगर मैं आपको important एक section refer करूँ कि आप किस section में जाओगे, then I would say कि आप simply section 49 पे आ जाइए. Why? Because section 49 is one of the important section कि अगर मैं आपको सिर्फ दो सेक्शन रजिस्ट्रेशन एक्ट के बोलूं तो आप दो सेक्शन में एक सेक्शन 17 उठाओगे और एक सेक्शन 14. रीजन बीइंग फुल रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो पर्पस है वो पर्पस है डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को स्टैब्लिश करना. एंड इफ यू वांट टू स्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट यू नीड टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन. तो अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना है तो कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो ये लिस्ट दी गई है. बट सपोज करिए इफ द डॉक्यूमेंट विच हैज बीन इनलिस्टेड अंडर सेक्शन 17 फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बट यू फेल्ड फॉर दैट, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको एक सिविल लॉ प्रेजेंट कराएगा, बट जो इसके इफेक्ट्स हैं दैट आर वेरी वेरी यू कैन से हार्श एंड स्ट्रिक्टर. अगर कोई डॉक्यूमेंट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है एंड यू फेल्ड फॉर मेकिंग रजिस्ट्रेशन, द इफेक्ट आर गिवन अंडर सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट. दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट 3 kinds of effect. The document will not be taken as a evidence in the court of law as per section 91 of Indian Evidence Act. This document cannot confer any kind of right on the person to whom you have vested the rights. The third point is that if SRA के अंदर अगर कोई right part performance का create हो रहा है तो क्या effect होगा या नहीं, so that is dealt under proviso of section 49. So remember student, section 17 and section 49 should always be read together because one section gives the list, other section gives that in non-compliance of section 17 what will be its effect. After section 49 we will take section 51
बिकॉज सेक्शन 51 टॉक्स अबाउट कि जो भी ऑफिसर्स होते हैं रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, वो एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और उसमें वो 5 तरीके के पॉइंट्स रखेंगे। तो 5 पॉइंट्स की बुक्स हैं जो आपको देखनी पड़ती है एज पर सेक्शन 51। तो यहाँ पर इसके साथ आप एक और सेक्शन पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड 52। आपके पास 5 काइंड्स की बुक्स हैं और इन बुक्स में डॉक्यूमेंट्स की डिटेल होगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होने हैं कंपलसरी, कौन से ऑप्शनल हैं, विल्स जो प्रेजेंट की जाएंगी वो किस बुक में रखी जाएंगी, अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर रिफ्यूज करता है टू मेक रजिस्ट्रेशन तो वो किस बुक में आएगा, एंड रेस्ट मिसलेनियस। सो देयर आर टोटल 5 kinds of books which are prescribed by the state government for registering officers. This is detailed in the section 51 and then especially section 52. When we have discussed section 52, then we will discuss another important section that is 60. क्योंकि once the document is endorsed, और यहाँ पर अगर आपने एक बार लिख दिया that the document is certified, it means that it becomes the public document, right? And when it becomes the public document, it means that you can take the certified copy of that public document for your use. So that is section 60. After section 60, I am referring some important section, that is section 71, section 72, section 73, section 74, and finally important section is that is section 7. ये एक पूरा ग्रुप ऑफ सेक्शन है, मैं इसलिए रिफर कर रही हूँ क्योंकि सपोज करिए अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जाते हो एंड द रजिस्टरिंग ऑफिसर रिफ्यूजेस टू डू सो, तो यहाँ पर सेक्शन 71 रजिस्टरिंग ऑफिसर में क्या किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज करेगा, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 71 कि रजिस्टरिंग ऑफिसर उसको रिफ्यूज करेगा। अगर रिफ्यूज करेगा तो आपके पास क्या रेमेडी है, दैट इज मीन्स टू से यू विल अप्लाई फॉर एप्लीकेशन और फॉर अपील। तो अगर आप अपील करोगे तो आप अपील सिर्फ एक ग्राउंड पर नहीं कर सकते, दैट इज क्लियरली सेड दैट डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, right? So if the registering officer has refused to register the documents on the ground that the document was not executed, you cannot apply section 72. You should bring an application. Remember students, section 73 is having some difference with section 72. सेक्शन 73 में आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हो रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास और आप बोलते हो कि सब रजिस्ट्रार हैज रिफ्यूज टू मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द ग्राउंड इज डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अगर ए और बी के बीच एक डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू द एक्स प्रॉपर्टी एंड दिस बी कम्स टू द सी दैट इज सब रजिस्ट्रार, तो यहाँ पर सब रजिस्ट्रार एज पर सेक्शन 71 इसको रिफ्यूज कर रहा है, देन यू विल मूव फॉर सेक्शन 73 और यहाँ पर आप रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन लेके आओगे और आप बोलोगे कि ये डॉक्यूमेंट हैज बीन वैलिडली एग्जीक्यूटेड। अगर डॉक्यूमेंट वैलिडली एग्जीक्यूटेड है इट्स मीन दैट इंक्वायरी होगी और ये इंक्वायरी कौन करेगा, इंक्वायरी विल बी डन बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। सो इंक्वायरी रजिस्टरिंग ऑफिसर करेगा एज पर सेक्शन 74। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट द रजिस्ट्रार ऑफिसर मेक द इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड या असर्टेन द ओनरशिप द वैलिडिटी ऑफ द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, यू शुड मूव फॉर सेक्शन 74। When then question comes, is there any provision under the registration act under which you can bring a suit? The answer is yes, that is section 77. If the registering officer as per section 72 or 74 fail to give you the remedy, then you can bring a suit under section 77. You can say that I am having the right that my document needs to be registered, but registrar or sub registrar both have refused to make the registration. I am bringing the suit here. So civil court में court ascertain करते हुए इस मैटर को डिसाइड करेगा once when the matter has not been refused here. इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि मैंने बोला आपको कि सेक्शन 71 और 72 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप उस प्रोसेस में जाते हो जहां सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज करेगा। तो रिफ्यूज कर रहे हो अगर कोई रिफ्यूज करता है और रिफ्यूजल मैलाफाइड है तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ पनिशमेंट और पेनल्टी, द आंसर इज यस। तो रजिस्ट्रेशन के कौन से वो सेक्शन है जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिसर या रजिस्ट्रार ऑफिसर के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज करता है दैट यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटीज एंड इफ यू डोंट डू देन वी विल इम्पोज द पेनल्टी, दैट इज सेक्शन
81. Section 81 says that if the registering officer or the sub-register officer has refused to make registration या incorrectly endorsed या incorrectly translated any of the person in authority, जितने भी अथॉरिटी हैं रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के आसपास जिनको भी ड्यूटी प्रेस्क्राइब किया गया है, अगर वो कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते या फॉल्सली इनकरेक्ट मैलाफाइड करते हैं तो एज पर सेक्शन 81 वहां पर पनिशमेंट है. और प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट, पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 7 years. Right, so we are referring at 81. Now I am discussing the last section for this, that is 82, because not just the registering officers but the person who goes for the registering officers for making registration. और अगर आपने incorrect false डिटेल दिया है अपने डॉक्यूमेंट में और उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास प्रेजेंट करते हो और ये प्रूव हो जाता है दैट यू हैव प्रेजेंटेड द डॉक्यूमेंट व्हिच वाज कंप्लीटली फॉल्स, इनकरेक्ट एंड दिस इज द पर्पस टू मेक कॉज एनी काइंड ऑफ इंजरी, तो वहां पर आप पर भी पेनल्टी इंपोज हो जाएगी. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट दैट वी नीड टू रिफर हियर. I would conclude this whole video in short brief that there are total 10 important sections if I am referring, that is to clause 6, section 17, section 18, section 19, section 21, section 23. Read with section 23A. 24, 25 we need to read together and then we'll move towards section 28. 28 talks about jurisdiction, then we can go for section 49, section 51, 52 and then we'll move towards section 71, 72, 73, 77 and finally 81 and 82. Thanks for watching this video.